बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनोमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में टुडे विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी मेजर द एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो बेसिकली इट इज पेयर वाइज मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन और द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। दो से ज्यादा वेरिएबल्स में कोरिलेशन जो है वो मेजर नहीं करता। यस, इफ देर आर मोर देन टू वेरिएबल्स तो उसमें पार्शियल कोरिलेशन या रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स कंट्रोलिंग द थर्ड वन कैन बी डन। तो कोरिलेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एज आई मेंशन्ड अर्लियर. The extent of relationship is actually measured with the help of a correlation coefficient, irrespective of the classification of the variable as dependent or the independent. So correlation does not measure cause and effect. Therefore, if you are focusing on a theory, then perhaps correlation may not be a relevant statistic. Correlation measure करने के लिए हमें we have to calculate three things. Number one, average of the series, each series. Which is indicated by x bar, y bar, जिसको हम sum of x values divided by the sample size. इसी तरह जो y है, y bar जो है, it is sum of y divided by n. तो इस तरह से ये mean निकल आता है. Then we calculate the deviation from mean and we take the product it makes. It calculates covariance. So covariance is the one thing which needs to be calculated or estimated before we go for the calculation of the correlation coefficient. उसके अलावा सेकंड जो चीज हमें चाहिए होती है, वेरिएंस ऑफ ईच सीरीज. फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ एक्स जो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस ऑफ वाई जो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. देन वी टेक द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच. स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंसेस, जो कि इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद देन वी टेक द रेशो ऑफ कोवेरिएंस and the standard deviations of the two series, which gives us the correlation coefficient. Values of the correlation coefficient. So generally correlation coefficient falls between 0 and 1 in absolute form, but actually it's actually in terms of actual values, the correlation coefficient, the value of correlation coefficient lies between -1 and +1. तो जितना ये 1 के करीब होता है उतना हम कहते हैं कि the extent of relationship is strong, और जितना ये 0 की तरफ होता है उतना हम कहते हैं the extent of relationship is very weak. तो इस तरीके से हम इसकी strength of relationship measure कर सकते हैं. Another thing which is very important related to the correlation coefficient is its sign. अगर correlation coefficient की sign negative है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि correlation वीक है, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं. तो जनरली व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, इट मींस द टू वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, इफ x is increasing, y may be decreasing, and if y is increasing, x may be decreasing. So in this case the correlation coefficient will be a negative number. Positive correlation coefficient indicates that the two variables move in the same direction. When we say in the same direction, so remember कई students यहाँ भी mistake करते हैं. For example, अगर value of x और values of y जो है वो decrease कर रही हो, तो correlation will be a positive number because they are moving in the same direction, the downward direction. Both are decreasing. अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हों तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी. तो लिहाजा हम कंक्लूड इसको ऐसे करेंगे, व्हेन x and y values are moving in the same direction, the correlation will be positive, and when they are moving in the direction opposite to each other, तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा. अब अगर इसकी वैल्यू पे जाएं तो हम इसको आमतौर पे परसेंट में कोट करते हैं. जैसा कि वैल्यूज तो इसकी आएंगी इन एब्सोल्यूट फॉर्म बिटवीन 0 and 1. तो अगर ये 0.8 आता है तो हम इसको 80% पढ़ेंगे. 0.1 आता है तो ये 10% होगा. तो जनरली तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पेयर वाइज एक दूसरे से कंपेयर होते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव सेंस में यूज होता है. लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में भी हम अगर चाहें तो 50% एक एवरेज एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन, बिलो विच इज ए वीकर कोरिलेशन कोएफिशिएंट.
इसी तरह अगर इससे अबव है तो हम इसको अबव एवरेज या स्ट्रॉन्ग की तरफ ये मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल 70% एंड अबव इज जनरली कंसीडर्ड एज a better or a strong correlation or the extent of relationship between the two variables. तो इसको कैलकुलेट करने का एक तो ये फार्मूला. दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम इनको इंडिविजुअल वेरिएबल्स को नॉर्मलाइज कर दें या स्टैंडर्डाइज वेरिएबल या स्टैंडर्ड स्कोर इन वेरिएबल्स का हम कैलकुलेट कर लें, तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x और y की वैल्यूज, हम इसको z में z वेरिएबल, z वेरिएबल या स्टैंडर्डाइज या नॉर्मल वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट करके अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें और फिर उसकी एवरेज लें तो ये कैलकुलेट हो सकता है. तो प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें मेरे पास जो इस वक्त डाटा सीरीज हैं वो एशियन स्टॉक्स के बारे में है. KSE 100, BS यानी बांग्लादेश 30 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडिया का, इसी तरह शंघाई, इसी तरह निके जापान का. तो इन ये डाटा सोर्सेज जो है, ये डाटा सीरीज जो है स्टॉक्स की, ये मैंने investment.com से ये डाउनलोड किए हैं. तो देखिए इसका क्या तरीका है. मैं इसको एक्सेल में और SPSS दोनों में, ये मैंने SPSS खोला, इसमें फाइल अभी कुछ नहीं है, तो मैं एक्सेल से इस डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल व्हेन आई राइट इंपोर्ट डेटा, तो ये मेरी एक्सेल में है. बाकी फॉर्मेट से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये मेरा डेटा है जिसको मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स का, तो इसको मैं एंटर, तो इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू ओपन. ये मेरे पास एक विंडो खुलेगी, तो मैं आई कैन रीड इट फ्रॉम हियर. अगर ये आपको वेरिएबल, ये बार है जिसको आप स्लाइड करके अगर आप देखें, तो इफ हेडर रो इज विजिबल एंड इट इज रीडेबल, तो आप समझ लें कि आपके वेरिएबल जो हैं वो सही फॉर्मेट में इसमें आ रहे हैं. तो इस तरीके से हम इसको आई कैन डायरेक्टली क्लिक हियर ओके. तो ये मेरे पास ये डाटा खुल गया है. तो इस तरीके से अब ये कंट्रोल T करके हम इसको ब्राउज करके भी देख सकते हैं. तो ये जो एक एक्स्ट्रा चीज आई है, आई कैन डिलीट इट. ये मेरा ख्याल है कि एक्सेल की फाइल में कुछ होगा तो जिसकी वजह से इसने एक नया वेरिएबल जनरेट कर दिया. तो मेरे पास ये निके, शंघाई, KSE 100 इंडेक्स, निफ्टी और DS 50 का ये डाटा आ गया. अब डायरेक्ट हम इसको कोरिलेशन से यहाँ पे जाएंगे. ये हमारे पास कोरिलेट, और कोरिलेट में बाई वेरिएट, जैसा मैंने बताया कि ये पेयर वाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करता है. तो इसलिए ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं जिनको मैं ट्रांसफर करूंगा इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल. पेयरसन कोरिलेशन है क्योंकि ये मेट्रिक डाटा है, इनका रैंक डाटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको पेयरसन कोरिलेशन. इसके अलावा ये फ्लैग सिग्निफिकेंस, अगर आप ये करेंगे तो इसके ऊपर स्टार होगा. जनरली स्टार जो है वो 1%, 5%, 10% के ऊपर आपको शो करता है कि whether the results are significant or they are not significant, यानी whether the results are reliable, generalizable या नहीं, वो इससे होता है. लेकिन अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको मैंने ओके किया. तो ये SPSS के अंदर ये हमारे पास इस तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स आता है जिसको हम पढ़ते हैं. ये निके का शंघाई के साथ, और इसी तरह ये फिर उसके KSE 100 के साथ, फिर उसके ये निफ्टी 50 के साथ, और फिर ये DS 50 के साथ है. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी. फॉर एग्जांपल ये है तो हम कहेंगे कि जो बांग्लादेशी स्टॉक मार्केट है, वो स्टॉक इंडेक्स है DS 50, वो निके के साथ 69% तक कोरिलेटेड है. इनकी को मूवमेंट है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और ये इनकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप 69% है, जो कि बिल्कुल वीक नहीं है, एक अच्छी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. इसी तरह बाकी भी इंडिकेटर आप देखें तकरीबन सब कोई 50% से ऊपर ही हैं, which indicates that these markets seem to me interconnected, their connectivity is there. तो ये SPSS के अंदर ये जो डाटा जो कोरिलेशन मैट्रिक्स आता है उसमें ये हर वैल्यू 2 दफा
दो कैलकुलेट होती है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। अब आप देखें यही चीज आप एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सेल की फाइल है, ये मेरा डाटा सेट है जिसका कोरिलेशन मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। तो सिलेक्टिंग ऑल दिस सीरीज एंड देन पुट इंसर्ट डाटा में जाके ये डाटा एनालिसिस टूल पैक के अंदर ये कोरिलेशन का ऑप्शन मौजूद है। जब हम इसको एंटर करते हैं तो इट आस्क्स मी अबाउट द वैल्यूज। तो ये वैल्यूज जो है मैं यहाँ से इसको दे सकता हूँ। ये मेरी डाटा सीरीज है, इसको यहाँ से लेकर ये सारी सीरीज मैंने इनपुट सीरीज को दिया। अब मेरी हेडर रो में लेबल लगे हुए हैं, वेरिएबल्स के नाम हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद मैंने आउटपुट रेंज देनी है। आउटपुट रेंज में यहाँ आउटपुट की कहाँ मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो कोई भी सेल हम क्लिक करेंगे तो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको ओके प्रेस करूंगा तो ये आप देखें ये फर्क है। जब आप एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में आपको ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होता है। जो मेन डायगोनल के ऊपर 1 1 1 ईच, व्हिच मींस द रिलेशनशिप ऑफ ईच वेरिएबल विद इट्स ओन वैल्यूज, जो 100% डेफिनेटली परफेक्ट होता है। और बाकी जो कोरिलेशन है उसको उसी तरह नॉर्मल तरीके से हम पढ़ते हैं। अगर मैं इसको अगर नहीं देखना चाहता तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आप आ जाएंगे, जब आप इसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको, एक तो डायरेक्ट तरीका है, हम वहां से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका SPSS के अंदर वो ये है कि जैसे ही आप एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव में ये डिस्क्रिप्टिव्स और इन डिस्क्रिप्टिव्स में जाके ये सारे वेरिएबल जिनको आप Z डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे ये इस बटन को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज एज वेरिएबल्स। तो इसको मैं ओके करूंगा तो ये मेरे पास ये यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। आप देखें ये जो वेरिएबल्स है ये दे आर न्यूली जनरेटेड और ये यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं के नाम जो है मैंने यहाँ पे ये नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वहां से मैंने कॉपी करके इधर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो ये वहां से उसी सीरीज को मैंने यहाँ कॉपी करके लिख दिया। अब आप ये देखें ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये SPSS कैसे कैलकुलेट करता है। इसमें ये दो चीजें हैं सिर्फ जो कैलकुलेट होंगे और उससे डायरेक्ट फिर ये Z में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू ABERAGE एवरेज ऑफ, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये कैलकुलेट, वैसे तो इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाती है। ये हो गया, इसके अलावा दूसरा मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तो मैं इक्वल टू STDEV, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। एक है स्टैंडर्ड डिविएशन डॉट P, ये पॉपुलेशन के लिए है। स्टैंडर्ड डिविएशन डॉट S, तो हमने डॉट S क्योंकि SPSS बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग है वो S के ऊपर है, सैंपल के ऊपर है। तो इसको ये हमने सिलेक्ट किया, डाटा सीरीज को यहाँ से सिलेक्ट किया, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है। अब जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस, ये मैं एक सिर्फ आपको एक सीरीज का करके दिखाऊंगा बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग, देन द वीडियो विल गेट लेंथी, देयरफॉर ये इक्वल टू, और मैंने यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करके ये DS का लास्ट में है तो इसको कंपेयर करना आपके लिए आसान होगा, माइनस ये जो इसकी ये मीन वैल्यू माइनस मीन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। तो इससे ये एक वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने इस पे अभी इंटेंशनली एक चीज जो कि मुझे करनी चाहिए थी मैंने नहीं की। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ ये वैल्यू तो ठीक होगी, बाकी सारी वैल्यू गलत होंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही वैल्यू होती है, उनको फिक्स नहीं किया। तो उनको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन आगे पीछे लगाते हैं। उसका एक डायरेक्ट तरीका यह है कि आप F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने के बाद इसी तरह नीचे वाले स्टैंडर्ड डिविएशन को भी आप F4 की प्रेस करेंगे और उसके बाद
आप एंटर करेंगे तो ये वैल्यूज जो आएगी, इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो आप देखें ये साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हैं। ये Z वेरिएबल जो है फ्रॉम द ओरिजिनल DS50, ये SPSS ने कैलकुलेट किया है और ये मैंने आपको करके दिखाया। द फार्मूला हैविंग अप्लाइड द फार्मूला, तो इस फार्मूले से ये शो हो रहा है कि आप देखेंगे 100% एक जैसी वैल्यूज आती हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब अगर आप इसका कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये बहुत आसान है। मसलन अगर हम इसका और इसका कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो इन दो का प्रोडक्ट हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्वल टू दिस नॉर्मलाइज सीरीज मल्टीप्लाई बाय दिस नॉर्मलाइज सीरीज, इसको मैंने एंटर किया और इसको ये ड्रैग किया। और ड्रैग करने के बाद जब मैं इसकी एवरेज लूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी दी कोरिलेशन कोफिशिएंट। जरा फार्मूले को हम विजिट कर लें कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम कार्ल पियर्सन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि टू वेरिएबल्स शुड बी मेट्रिक यानी मेजरेबल, और नंबर टू बोथ हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो है फिर हम इनका प्रोडक्ट लेके हम इसको जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू AVERAGE एवरेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो कि ये हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया। तो ये 0.91 है और ये हमने किसका फाइंड आउट किया है? ये हमने फाइंड आउट किया है निफ्टी 50 और जो है DS50 का। तो जरा देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये निफ्टी 50 और ये DS का ये 0.93। तो जरा हम देखें हमने जो मैनुअली किया है वो कितना है। ये हमारा ये 0.91 और इसको राउंड ऑफ करके ये हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट इन मल्टीपल वेज, देयर आर डिफरेंट वेज। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक होगा, another topic. We will further move on in the course of econometrics. Thank you very much.